More than 40 schools in the national capital received bomb threats via email with a ransom demand of $30,000. According to Delhi police, the threats began at GD Goenka School in Paschim Vihar and DPS RK Puram, and several other schools including Mother Mary's School, British School, Salwan Public School and Cambridge School also reported receiving similar threats. Police, along with fire officials, dog squad, bomb detection teams and local cops reached the spot and conducted search operations in the school. In response to the threats, students were sent home from the affected schools. Fire officials, bomb detection teams, the dog squad and local police quickly arrived at the schools to carry out search operation. Meanwhile, some breaking news coming in. Meanwhile, on several schools in Delhi received bomb threats, DCP Southwest Surendra Chaudhary has stated that the immediate action has been taken and the investigation is still underway. Let's in fact listen in. साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी 4 स्कूल्स में आया है और बाकी लगभग 40 से ज़्यादा स्कूल्स में दिल्ली में मेल आया है, जिसमें रात को 11:38 का मेल है, जिसमें बॉम्ब के बारे में बताया कि स्कूल्स में लगाए गए हैं। तो हमने इस सूचना के आधार पे सभी स्कूल प्रिंसिपल्स और सबसे संपर्क किया और पूरी SOP फॉलो की और सब जगह पे हमारी BD टीम से चेक करवाया, लेकिन कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। एक ही मेल से We're seeing that more than 40 schools in Delhi have received bomb threats, and till now nothing suspicious has been found when it comes to the bomb threats that have been received. The investigation is still underway, and when it came to the schools that have received, we're seeing that the first of the schools that received was GD Goenka and DPS RK Puram. We have with us my colleague Aditya Kumar joining us on the telecast. Aditya, what is the investigation currently, the developments that are coming in? We are seeing that the DCP has reacted, DCP Southwest Surendra Chaudhary has reacted and said that investigation is still underway. I think my colleague is currently facing some connection issues. So we're seeing that there is a series of bomb threats being received in the national capital. My colleague Aditya Kumar is back with us. Aditya, if you can hear me, we are seeing a trend of bomb threats being received by the schools in Delhi. Over 40 schools have received bomb threats. What is currently the investigation, in the progress in the investigation? And we are seeing that DCP Southwest has reacted to that as well. जी, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से सुबह 7 बजे ये सूचना मिली थी दिल्ली पुलिस को, तो उसके बाद जितने भी, क्योंकि शुरुआती दौर में 2 ही स्कूलों की सूचना मिली थी कि DPS RK पुरम में और GD गोएंका स्कूल जो है वहां पे इस तरीके के मामले आए हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया था, 40 स्कूल के सामने नाम आए जहां पर इस तरीके के मेल किए गए थे। अभी 7 बजे से लेकर के अब तक जो है जांच चल रही है। कई स्कूलों में अभी भी जांच चल रही है, जैसे RK पुरम में अभी भी दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो अंदर हैं, वो जांच कर रहे हैं। लेकिन कुछ जवान जा चुके हैं, लेकिन अभी भी अंदर जांच चल रही है। जिस तरीके से DCP ने कहा कि आगे की बात जो है, आगे की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू है, और जैसे अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सवाल का उत्तर अभी मिलना बाकी है। जैसे कहाँ से मेल आया, मेल करने वाला कौन था, किस परिस्थितियों में मेल किया गया, वो क्या चाहता था, किस तरीके की इच्छा थी उसकी जिसके वजह से वो मेल किए गए हैं। क्योंकि दिल्ली में इस तरीके के मामले अभी लगातार आ रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन रैंसम की बात जो इस बार नहीं है। उसके पहले एक स्कूल के बाहर में विस्फोट भी किया गया था। तो इस तरीके के तमाम जो मामले हैं उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरे मसले को गंभीरता से देख रही है, जांच पूरे अच्छे से कर रही है, किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरत रही है। कहीं अगर 40 स्कूल में किसी एक में भी कुछ ऐसे संदिग्ध चीजें पाई जाती हैं, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस अपने पूरी तरीके से जांच कर रही है। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जिस तरीके से मेल में लिखा हुआ था कि हमने 40 स्कूलों में, आपके स्कूलों में हमने बम डिटोनेटर लगा रखा है और वो इतने छोटे हैं जो आपको दिखाई नहीं देगा, स्कूल को ज्यादा वो नुकसान नहीं कराएगा, लेकिन आपके हाथ पैर जो हैं वो जरूर जा सकते हैं, जो आपको घायल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही थी। बम स्क्वाड की टीम जो थी वो मौके पे थी, जो डॉग स्क्वाड थे वो जांच कर रही थी। लेकिन अधिकतर जगहों पे अब ये साफ हो गया है कि ये एक हॉक्स कॉल था और ये मात्र एक अफवाह फैलाने के लिए किया गया जो काम था वो था। लेकिन अभी जांच जिस तरीके से DCP ने कहा कि अधूरी है, जांच पूरी होने के बाद भी पता चल पाएगा। जो उत्तर खोजने बाकी है, पहला कि ये किसने किया है, कहाँ से किया गया है मेल, क्या उनकी इच्छा थी, किस तरीके की वो उसकी मंशा थी, ये सब जांच जो है। Thank you so much for joining us on the telecast and sharing those details.